Hello and welcome back to another video. The topic of this video is the President's speech at the Pakistan Day Parade 2025, and it was really embarrassing to see Mr. Asif Ali Zardari and his speech. It was like a roadkill. It was looking like they were dragging him into speaking in front of all those people, and not a single person had the guts and confidence and audacity to stand up and say that please stop this and it's not working. The speech is not working according to as planned. And people were like sitting and listening to the pathetic speech. These people were army officers and they were like just lowering their heads and doing nothing. Not even a single officer had the guts to stand up and say that stop this speech because it's not making any sense. But unfortunately, not a single officer stood up. And they're all part of a mafia. And this mafia, the regime change mafia, which is sucking the blood out of Pakistan. And unfortunately, he couldn't even complete a single sentence properly. It was really pathetic and it's a sad state of affairs, and we cannot like categorize it into any particular matter. But we can just say that all we can do is pray for Pakistan, for the betterment of Pakistan, and for corruption free leadership. That Pakistan gets corruption free leaders who can run Pakistan appropriately and in the right way. So all I'm trying to say is that it was really unfortunate and a sad state of affairs to see the speech, and he couldn't even complete a single sentence. He was mincing words and he was talking bullshit, and he had not rehearsed the speech. Whenever you're speaking in front of an audience, then you must read the script, whatever is written in the paper, and you have to read that. And he was doing exactly that, but it was like he's suffering from some sort of mental decline that he couldn't even read from the paper. So this is a really sad state of affairs, and I'll see you in the next. Take care and have a nice day. Rahman Rahim. Mr. Shahbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, Ministers, Members of the Parliament, Chairman, Joint Chief of Staff Committee, Chief of the Army Staff, Chief of the Naval Staff, Chief of the Air Staff, diplomats, parade commanders, and honorable guests, Assalamu alaikum. आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक। आज की तकरीब में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की कौम के लिए एक अहम दिन है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत और अल्लामा इकबाल के ख्वाब ने पाकिस्तान को यकीनी बनाया। आज के दिन उन लाखों मुसलमानों की कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में ख्वाब हकीकत में बदला। आज हम वतन के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का मकसद एक ऐसा मजबूत और जदीद इस्लामी फलाई ममलकत है जहाँ मसवात का बोलबाला हो और कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो। आज के दिन पूरी कौम उसी इत्तेहाद। हमने बहुत सी कुर्बानियाँ
दे कर आज़ादी हासिल की है। आज़ादी की इस नेमत को तहफ़्फ़ुज़ इससे भी बड़ा फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम और अफ़वाज मादर वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए हिफाजत के लिए कभी किसी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म के अल्फाज यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन पर हम वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशत गर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशत गर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन हैं। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के इंशाअल्लाह हमारी नौजवान नस्ल में नफ़रत और मायूसी फैलाने को कोशिश की जा रही है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। हमारे अंदर मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियतें हैं क्योंकि हम एक बाहौसला कौम हैं। हमें अपनी कौम की तवानाई सियासतें पर इत्मीनान है और हम भी मुश्किलात से नहीं घबराते। मुझे उम्मीद है कि हम इन सब अंदरूनी और बैरूनी साजिशों की बावजूद पाकिस्तान की तामीर करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल मसाइल का सामना है। हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज अवाम के शाना बेशाना बेशुमार कुर्बानी दे रहे हैं। हम अपनी सरहदों की हिफाजत, मेशत और ज़राअत को मुस्तहकम करेंगे, तावीनी और तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाएंगे और अपनी नौजवान नस्ल के लिए रोज़गार पैदा करेंगे। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। हमें उनको तालीम, तहक़ीक़ और जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करना है। तमाम सूबाई हुकूमतें को मैं चाहना है कि वो बुनियादी साथ और समाजी बहबूद पर स्पेशल तवज्जो दें। ख़वातीन और हज़रात, हमारी ख़ारजा पॉलिसी अपने अमन और इस्तेकाम पर मबनी है। हम अपने हमसाए मुल्क और आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम करने की ख्वाहिशमंद हैं। जो बहमी इंतज़ाम और मुस्तक़िल खुशहाली की बुनियाद पर हो। हमारे मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मादर वतन की हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानी दे रहे हैं। हम इनकी अज़्म और बहादुरी को
सलाम पेश करते हैं। 23 मार्च के इस अजीम दिन हम अपने कश्मीरी भाइयों बहनों को हरगिज़ नहीं भूले जो तवील अरसे से भारत की रियासती दहशतगर्दी के शिकार हैं। हम मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती करते हैं और उनके बेलौस कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। हम हक़ खुद इरादी के लिए दुनिया के हर फोरम पर उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करने और UN के रेजोल्यूशन के तहत अमल कराएं। यहाँ हम फ़लस्तीन की साथ इज़हार यकजहती और के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की मजबूत अज़म का इज़हार करते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीन अवाम के नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी फ़ैसला कुन इक़्तिदाम करे। फ़लस्तीन अवाम को बग़ैर किसी बैरूनी मुदाखलत के अपने वतन में मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का हक़ हासिल होना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, हमारी सामने सफ़र आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। याद रखें, पाकिस्तान की असल ताकत उसकी अवाम है। आपकी साबित कदमी, मेहनत और हुब्बुल वतनी ने हमेशा इस मुल्क की मुश्किलात से निकाला है। मैं आप सब से अपील करता हूँ कि अपने तमाम तर ताकत मुल्क की तरक्की के लिए वफ़ कर दें। आइए इख्तलाफात से बालतर हो के एक खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए काम करें। मायूसी और मुनाफी सोच को तर्क करके इत्तेहाद, सच्चाई और उम्मीद को अपनाएं। हमें एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जो ताकतवर, तरक्की याफ्ता और इंसाफ पर मुबनी हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त और अज़मत और सरबुलंदी के राह पर चलाए के इत्तेफाक से अता फरमाए। आमीन। आखिर में मैं शानदार परेड के इंतकाद पर परेड कमांडर और ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की ये तकरीब बिलाशुबा मज़म्मत पाकिस्तान के साथ साथ कौमी यकजहती और वक़ार की भरपूर झलक पेश कर रही है। यहाँ मौजूद अफसर्स, JCOs और जवान ने अपनी सलाहियतों का जिस तरह कौमी जज्बे को ताज़ा किया है, मैं उन पूरी कौम के तरफ से खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आवाज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।